Hello, my dear students. Hope you all are doing well. I'm your science teacher Deeksha. I welcome you all to our lesson number 11, Chemical Effects of Electric Current. So, my dear students, in our previous class, if you remember, now we have an understanding what chemical effect of electric current means. So, whenever electricity is passed through any conducting solution, what will happen? It can cause chemical reaction. Today we are going to understand, students, one of the most important applications of chemical effect of electric current, that is electroplating. Okay, but before we start to understand this concept, we are going to continue where we left our lesson in the previous class. So we are going to start with an activity. Again, it's a very interesting activity. So we know, students, that there are many liquids which are conducting. But can we extend our understanding and we can apply the same to vegetables and fruits? Because the vegetables and fruits also contain some juices. Okay. So if I take a potato, for example, can we test whether potato is conducting or not? So potato is basically solid, but अगर आप potato को half में cut करेंगे तो आप देखेंगे उसमें से juice निकलता है. Okay, some juices are present in every vegetable and fruit. आप कोई भी vegetable fruit लेंगे उसमें कुछ amount of juice होगा, मतलब लिक्विड तो है. सो यही हमें टेस्ट करना है कि कैन अ पोटैटो आल्सो बी अ कंडक्टिंग सब्सटेंस. ओके, जो लिक्विड है उसके अंदर क्या वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, यही हम चेक करेंगे. सो अगेन द सेम सेटअप इज देयर. हमारे पास टेस्टर है. इस बार हमने टेस्टर में क्या लगाया है? मैग्नेटिक कंपास. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ if you have this setup, the battery, the magnetic compass. Now this positive terminal of the battery, the positive terminal, the wire which is connected to the positive terminal, ये भी insert कर दी हमने potato में, and negative terminal वाली wire भी हमने potato में insert कर दी. Okay, now these wires are made up of copper. ये copper wires है जो हमने यहाँ पे potato में insert की है, right? So what will happen now, once we have connected all the wires, after some time you will see that there is a greenish blue spot on the surface of potato. Okay, so there is a color change. हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन में, so there is a possibility that the solution's color might change. तो यहाँ पे भी कलर चेंज नजर आता है जो ये इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू टू टेस्ट वेदर आर गेस इज करेक्ट. हम क्या करते हैं, हम एक न्यू पोटैटो लेते हैं और अब क्या करा हमने, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया. व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ था. अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ ले लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ ले लेंगे. ठीक है, तो सेम सेटअप है. अब हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल उधर कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दिया. सो नाउ दिस बिकम्स द पॉजिटिव टर्मिनल. समझ आया, ये अब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है. सो after you change the polarity of the battery, then you will see that now this greenish blue spot has come over here. ठीक है, पहले जो greenish spot यहाँ था, अब ये greenish blue spot यहाँ है. So every time it is seen that the wire which is connected to the positive terminal, okay, positive terminal of the battery, the wire which is touching the surface of the potato, which is connected to the positive terminal of the battery, only there the greenish blue spot is seen and not on the other wire. ठीक है, जो दूसरी वायर है उस पे greenish spot नहीं आता है. Only the wire which is connected to the positive terminal, there you can see that greenish blue spot, and that's your observation. Okay, after leaving the wires in the potato for some time, you will see a greenish blue spot on the surface of potato. You will see that greenish blue spot only around the wire which is connected to the positive terminal of the battery. हमेशा वहीं पर ही आपको वो greenish blue spot नजर आएगा. So what can you conclude, students? अब यहाँ पे negative terminal पे जब भी होगा उस स्पॉट पे आपको कोई ग्रीनिश कलर्स नजर नहीं आएगा. ठीक है, सो द spot is seen
no spot is seen on that area where the negative terminal, the wire which is connected to the negative terminal is there. Okay, तो सिर्फ positive terminal वाली side पर ही क्या होगा, potato के surface पर that greenish blue spot is seen. So what do we conclude over here? That this greenish blue spot observed only around the wire which is connected to the positive terminal of the battery, it indicates that there is a chemical change within the potato because of the passage of current. So basically this activity shows that not only liquids but fruits and vegetables, they are also having some substances inside it. कुछ juices present होते हैं जो electricity conduct कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे हम फ्रूट्स भी ले सकते हैं. फ्रूट्स के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिट्रस फ्रूट्स. तो सिट्रस फ्रूट्स में भी स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज दे आर एसिड्स. ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में क्या होगा, एसिड्स, और हम जानते हैं कि एसिड्स गुड कंडक्टर्स होते हैं. तो वो भी कुछ इसी तरह का केमिकल चेंज आपको शो करेंगे. ऑल राइट, now students, let's have a look at one of the very important applications of chemical effect of electric current, that is known as electroplating. अभी क्या है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास electroplated objects आपने देखी है. ठीक है, so you must have seen some of the articles like the handle of a bicycle. Okay, तो जब bicycle new होती है तो उसका handle कितना shiny होता है, but as you use that bicycle over time, you will see that the shiny appearance of that handlebar has decreased. तो वो जो शाइनी अपीयरेंस है धीरे धीरे कम हो जाती है, या फिर अगर उस हैंडल बार पे कोई स्क्रैच लग जाए तो आप देखेंगे कि शाइनी अपीयरेंस जो था, जो शाइनी पार्ट था, वो टोटली स्क्रैप ऑफ हो जाता है और उसके नीचे का जो एक्चुअल मेटल है वो आपको नजर आता है. सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स दैट देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स प्रेजेंट अराउंड अस व्हिच हैव अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. ओके, तो अंदर तो मटेरियल अलग है, उसके ऊपर की कोटिंग शाइनी है. एंड दिस इज व्हाट an application of electric current, chemical effect of electric current is, that you are putting a layer of one metal over the other. You must have seen so many ladies, carrying jewelry, wearing jewelry, which are actually not made of gold, pure gold or pure silver, but they look as if they are made up of gold and silver. So what is happening here, students, कि यहाँ पे gold, पूरा gold का जो ornament है वो पूरा gold का नहीं बना हुआ, सिर्फ उसकी एक लेयर लगी हुई है एक लेस एक्सपेंसिव मेटल पे. यू मस्ट हैव सीन टूल्स. ओके, तो जो टूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिकली जो मेटल से बनते हैं वो काफी डल होते हैं और वो करोड भी हो सकते हैं. ठीक है, रस्ट लग सकती है उनमें, इसीलिए उन टूल्स के ऊपर क्या लगाई जाती है, एक और मेटल की कोटिंग लगाई जाती है. शाइनी आप देख सकते हैं आपके इन योर वॉशरूम, इन योर बाथरूम्स, देयर आर सो मेनी the handles of or you can say tap, जो आपने देखा टैप कितना शाइनी होता है, तो टैप के ऊपर भी क्या होता है, एक शाइनी लेयर दूसरी मेटल की लगाई जाती है. You can see over here also that before the appearance of this material is dull, somewhat dull, and after electroplating it has become शाइनी. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले देखते हैं कि ये होता कैसे है. हाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर अदर. तो ये होता कैसे है, एक्सपेरिमेंट वाइज कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक. So again we are going to understand this through the help of this activity. This activity में क्या है students, again the same setup. You have the battery, the wires connected. अब हमने क्या किया, इन दोनों वायर्स को हमने कनेक्ट किया है दो कॉपर प्लेट्स पे. ठीक है, एक कॉपर प्लेट को कनेक्ट किया है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अनदर कॉपर प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. गॉट इट? सो दिस कॉपर प्लेट बिकम्स द एनोड. रिमेंबर, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कैथोड. रिमेंबर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इन दोनों प्लेट्स को इमर्स किया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. तो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, दैट इफ यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन गैस एंड oxygen gas. So what is happening here also the same thing. Now you are passing electricity through which solution?
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होते हैं और ब्लू कलर का पाउडर आप समझ लीजिए। उस ब्लू कलर के पाउडर को हमने क्या किया, पानी में डिसॉल्व किया टू गेट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ना कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट, और हमें पता है कि सॉल्ट क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो होगा क्या, इट विल ऑल्सो स्प्लिट अप, ये भी स्प्लिटिंग होगी यहां पे। सो कॉपर सल्फेट after the passage of electricity through the solution, it will split up into what, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तो क्या स्प्लिट हुआ था, वाटर। तो कॉपर सल्फेट किस में स्प्लिट होगा, कॉपर और सल्फेट में स्प्लिट होगा, ठीक है। नाउ आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, जब भी कोई सोल्यूशन स्प्लिट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो उनमें से एक तो पॉजिटिव पार्टिकल होता है और दूसरा नेगेटिव। सो द वन विच इज पॉजिटिव इज कॉपर। सो कॉपर इज द पॉजिटिव पार्टिकल एंड सल्फेट इज द negative particle. Got it? Now when they split up, they will move towards the opposite electrode. मतलब जो positive particles है वो कहाँ जाएंगे, negative electrode के पास, और जो negative particle है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो कॉपर, यहां सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन टूटा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर और सल्फेट अलग हुए। अब वो कॉपर कहां जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, सो वेयर इट विल गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड के पास जाएगा। कहां जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन में कॉपर 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 अलग हो गए हैं। अब ये कॉपर कॉपर कहां जाएंगे, यहाँ, और यहां जाके क्या कर लेंगे, ये डिपॉजिट हो जाएंगे। So the copper plate will become thicker, मतलब ये जो कैथोड वाली कॉपर प्लेट है ये क्या हो जाएगी, मोटी होती जाएगी। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन वाले जो कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। नाउ बिकॉज फ्रॉम द सोल्यूशन कॉपर इज मूविंग अवे, व्हाट इज हैपनिंग, कॉपर इज मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। तो अब क्या होगा, ये जो एनोड वाला कॉपर है, इस लॉस को पूरा करने के लिए, बिकॉज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एक तरह से, तो कॉपर की कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, कॉपर फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द सोल्यूशन। आप समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड की तरफ, और कैथोड क्या हो रहा है, थिकर होता जा रहा है, ठीक है। और एनोड से कॉपर निकल के सोल्यूशन में आ रहा है, क्योंकि कमी हो रही है ना, यहाँ पे कॉपर के सोल्यूशन में कमी हो रही है, टूट गया है कॉपर, वहां पे कैथोड पे चला गया है। तो एनोड में से कॉपर निकल के कहां आ रहा है, आपके सोल्यूशन में निकल के आ रहा है। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल मेक द एनोड थिनर, पतला होता जाएगा ये एनोड। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये एक्टिविटी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल अगेन कम इन योर हायर क्लासेस, सो यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू एनी सोल्यूशन, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। The cathode becomes thicker and the anode becomes thinner over time. क्यों हुआ, ये मैंने समझाया आपको। Also students, cathode पे क्या हो रही है, reddish brown coating is seen on the cathode. Why? Because copper is depositing on cathode. Okay? तो ये हो रहा है students, ठीक है। Now this particular process can be used to make pure copper. कैसे बना सकते हैं, हमने जो एनोड है वहां पे क्या ले लिया, इम्प्योर कॉपर ले ली, और कैथोड को ले लिया प्योर कॉपर, और वही क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। आपको पता, सोल्यूशन में से जो कॉपर है वो कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एनोड से क्या निकल कर आता है, बिकॉज सोल्यूशन में कॉपर की कमी हो गई है, देयर इज अ लैक ऑफ कॉपर इन द सोल्यूशन, सो टू रिस्टोर दैट लैक व्हाट विल हैपन, कॉपर फ्रॉम द एनोड स्टार्ट्स कमिंग इन द सोल्यूशन। तो क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, ये कॉपर जो एनोड है वो तो पतला होता जा रहा है देखो, और जो कैथोड है वो मोटा होता जा रहा है। तो अगर आपके पास इम्प्योर कॉपर है और उसे आपको प्योर बनाना है, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है। क्यों, क्योंकि यहां से सिर्फ कॉपर नीचे आएगा सोल्यूशन में, और वही कॉपर कहां जा रहा है, कैथोड की तरफ। सोल्यूशन से निकल के कहां जा रहा है, कैथोड की तरफ ही तो जा रहा है। सो एनोड की जो इम्प्योरिटीज है वो यही सोल्यूशन में रह जाएगी, क्योंकि वो because that impurity particles cannot go to the electrode. Impurities के जो particles होते हैं उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जो आप कॉपर यहाँ नीचे देख रहे हैं उस पर चार्ज होता है, तभी तो वो कहाँ जाते हैं,
पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाते हैं। ओके, कॉपर इज अ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, तभी वो कहां जाती है, कैथोड पे चली जाती है, विच इज अ नेगेटिव चार्ज रॉड, क्योंकि वो नेगेटिव आपके बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। गॉट इट? सो दिस इज अनदर वे, वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्योरीफाइंग कॉपर। अगर आपके पास कोई कॉपर रॉड है जो इम्प्योर है, तो उसे प्योर करने का, प्योरीफाई करने का ये बहुत अच्छा मेथड है कि एनोड में से सिर्फ कॉपर निकल के कहां जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, एंड द कैथोड यू विल गेट इज अ मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। यहां से इम्प्योर कॉपर का जाएगा, प्योरिटी के साथ जाएगा, और इसकी जो इम्प्योरिटीज है यहीं नीचे रह जाएगी। ठीक है? So what can we conclude? When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper dissociates into copper and sulfate. It breaks. Dissociate का मतलब क्या हुआ? Break हो गया. So copper और sulfate में break हो गया. Now copper being a positive charged particle, ठीक है? पॉजिटिव है, आप ये समझ लीजिए, पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा. सो द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. From the other electrode, अब क्या हो रहा है, जितना कॉपर सोल्यूशन में से, देखो यहाँ पे कॉपर डिसोसिएट होकर यहाँ पे कहाँ चला गया, कैथोड पे चला गया. ठीक है, कॉपर के आयंस है, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल. तो आपके जो कॉपर सल्फेट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वो कॉपर और सल्फेट में चेंज हो गया, तो कॉपर पॉजिटिव है. पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जा रहे हैं. ठीक है, और क्या हो रहा है, डिपॉजिट होते जा रहे हैं. ठीक है, और यहां से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर नीचे की तरफ आ रहा है टू रिस्टोर दैट लैक इन द सोल्यूशन. फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कॉपर का ही बना हुआ है, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन. तो एनोड के कॉपर जो है पार्टिकल्स, वो नीचे नीचे सोल्यूशन में आते जा रहे हैं, और सोल्यूशन के कॉपर कहां जा रहे हैं, कैथोड पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं. Got it? This whole cycle. So this whole cycle continues. ये पूरी साइकिल चलती रहती. डिसोसिएट हो रहा है कॉपर, कहां जा रहा है, कैथोड पे जमा होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, और उतना ही एनोड कम होता जा रहा है. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल एनोड, ये जो पूरी कॉपर की जो प्लेट है ये पूरी सोल्यूशन में चली जाती है. ओके, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है यही क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज देयर इज अ केमिकल चेंज अकरिंग इन द सोल्यूशन यू हैव टेकन, वन मेटल कैन बी डिपॉजिट ऑन अनदर मेटल. मतलब अब इस कैथोड के ऊपर आप कोई भी मेटल ले लीजिए. सपोज यू वांट टू टेक दिस, you want to have a copper coating over brass. ठीक है, ये क्या है, ब्रास. कोई दूसरा मेटल ले लीजिए आप, कैथोड पे कोई भी मेटल ले लीजिए, उस पे आपको अगर कॉपर की कोटिंग लगानी है तो बस आपको क्या करना है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे वो मेटल लगाना है जिसके ऊपर आपको कॉपर चाहिए. वैसे ही स्टूडेंट सिल्वर की कोटिंग, अगर आपको कोई भी मेटल है, सपोज यू हैव आयरन, ठीक है, आयरन के ऊपर आपको सिल्वर की कोटिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, आयरन की रॉड यहाँ पे लगा देंगे. ठीक है, कैथोड के ऊपर, यहां पे हम लेंगे सिल्वर का सोल्यूशन. अब यहाँ कॉपर सल्फेट नहीं लेंगे. इफ यू वांट कॉपर मेटल टू बी डिपॉजिटेड, देन वी विल टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. इफ यू वांट आयरन टू बी डिपॉजिट, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आयरन का कोई सोल्यूशन लेंगे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे यहाँ पे. तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, सिल्वर एंड नाइट्रेट. सिल्वर इज पॉजिटिव, इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड. तो यहाँ पे आप कोई भी मेटल ले लीजिए, कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड वेयर यू हैव टू टेक द मेटल ओवर विच यू वांट अ डिपोजिशन. तो यहाँ पे आप जो मटेरियल है, आर्टिकल है, वो आप लेंगे कैथोड पे, और सोल्यूशन आप वो लेंगे जिसकी कोटिंग आपको चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? इफ यू वांट सिल्वर कोटिंग, take the solution of silver, okay, and take a cathode over which you want silver coating. अगर आपको कोई सिल्वर ज्वेलरी है, I mean you have any other metal jewelry, कोई और मेटल की ज्वेलरी है, आपको उस पे सिर्फ सिल्वर की कोटिंग चाहिए, तो आप ज्वेलरी कहाँ रखेंगे, कैथोड के ऊपर लगाएंगे, और यहाँ सोल्यूशन क्या लेंगे, सिल्वर का सोल्यूशन लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर के और भी सोल्यूशन होते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग.
I hope you understood. Very important. Please keep in mind. Now students will understand what electroplating is. अभी हमने क्या पढ़ा? Electroplating ही पढ़ाई, पूरा process पढ़ाई. This is a process of electroplating. Now how do we define electroplating? The process of depositing a layer of any desired metal. आपकी choice है, आप कौन सा metal का deposition चाहते हैं on another material by means of electricity is known as electroplating. What the word suggest, आपको वर्ड ही बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप क्या करें? प्लेटिंग करें, मतलब एक डिपोजिशन कर रहे हैं एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर. ठीक है. नाउ यू विल सी स्टूडेंट्स, यू विल से दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. यूज ये होता है स्टूडेंट्स कि कभी कभी हमें एक शाइनी मटेरियल चाहिए. मेनी थिंग्स आर डल इन अपीयरेंस, सो इफ यू वांट अ शाइनी लुकिंग मटेरियल जो शाइन करे, अपीयरेंस वाइज अच्छा हो, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं. इफ यू वांट एनी मटेरियल टू नॉट बी करोडेड, खराब ना हो, करोजन ना हो, तब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं. सो वील कम टू दैट. लेट्स हैव अ लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो फर्स्ट वन इज अ क्रोमियम प्लेटिंग. Chromium is a metal, students, which has a shiny appearance. It does not corrode and it resists scratches. मतलब आप स्क्रैच करेंगे तो उस पर स्क्रैचेस टिकेंगे नहीं, रेजिस्ट करेगा वो स्क्रैचेस, खराब नहीं होता है, करोड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर अराउंड इट. शाइनी अपीयरेंस है. पर क्रोमियम एक बहुत एक्सपेंसिव मेटल है. सो इफ यू वांट एनी आर्टिकल टू बी मेड which is made up of completely chromium, so it will be very expensive. अगर आप कोई चीज बना रहे तो पूरी क्रोमियम की अगर आप बनाएंगे, so it will cost you a lot of money. So to make a cheaper version of it, what we can do, we can just क्रोमियम एक प्लेटिंग कर सकते हैं. मतलब you can take any object made up of cheaper metal, okay, and then you can just deposit a layer of chromium over it. Okay, so if you are doing such thing, you are saving a lot of cost in making that article. So you have taps, gas burner, बाइसिकल बेल, व्हील रिम्स. आपने देखा होगा कितनी शाइनी है. जब नया नया गैस बर्नर आता है, आप देख सकते हैं कितना शाइनी होता है उसका अपीयरेंस. बाइसिकल की बेल बहुत शाइनी होती है जब आप शुरू में बाइसिकल खरीदते हैं. टैप का अपीयरेंस आप देखिए, बट व्हेन यू यूज इट ओवर टाइम, तो उसकी जो शाइनी अपीयरेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. सो ये सारे मटेरियल्स क्या है, इन सारे ही एग्जाम्पल्स में ये जो शाइनी कोटिंग है ये क्रोमियम की कोटिंग है. बट अगर आप क्रोमियम हटाएंगे तो आप देखेंगे उसके नीचे जो मेटल है वो एक चीपर मेटल है. सो द होल बॉडी ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ सम चीपर मटेरियल. ओनली दिस शाइनी coating of chromium has been deposited on it using electricity. समझ आई ये बात? So one of the way is to make the appearance of certain things shiny. Next is in making ornaments. So ornaments भी students वही है, एक शाइनी अपीयरेंस के लिए हमें चाहिए. बट अगर आप कोई भी चीज प्योर सिल्वर और प्योर गोल्ड में परचेज करते हैं, दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी. सो इफ यू वांट टू वेयर ऑर्नामेंट्स व्हिच लुक लाइक गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स बट दे आर मच चीपर, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से आप कर सकते हैं. व्हाट विल हैपन? सो इफ यू हैव समथिंग, सम आर्टिकल लाइक दिस, ओके, अ रिंग इज देयर बट इट इज मेड अप ऑफ सम चीपर मटेरियल. अब आपको क्या करना है, दिखाना उसे ऐसा है कि वो गोल्ड से बना है, तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी मार्केट में अवेलेबल है. सो व्हाट हैपेंस कि मेटल का जो अंदर मटेरियल है वो क्या है, दूसरे मेटल से बना हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर एक गोल्ड की या सिल्वर की लेयर लगा दी गई है. सो दैट्स व्हाई इट इज मच चीपर देन प्योर गोल्ड एंड प्योर सिल्वर ऑर्नामेंट्स. गॉट इट स्टूडेंट्स? एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स इन मेकिंग टिन. ओके, टिन कैंस. तो टिन कैंस आपने मार्केट में देखे होंगे स्टूडेंट्स. ये टिन कैंस जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड. नाउ बेसिकली ये कैसे बनते हैं, ये पूरा जो कैन है ये टिन से नहीं बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन. ये पूरा कैन आयरन से बना हुआ है. उसके ऊपर क्या किया है, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है. व्हाई? बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज वेरी रिएक्टिव. आयरन सिर्फ अगर आप इस कैन को अगर आप सिर्फ आयरन से बनाते, सो व्हाट विल हैपन, आयरन करोड्स वेरी इजीली. आयरन को क्या हो जाता है, जल्दी से रस्ट लग जाती है. अगर आप इस रस्टेड कैन में खाना खाएंगे, सो व्हाट विल हैपन,
the food will get spoiled. What will happen? The food spoils. तो खाने को उस रस्ट से बचाने के लिए, उस स्पॉइलेज से बचाने के लिए टिन इज यूज. टिन की सिर्फ कोटिंग है ऊपर से, है ना, अंदर आयरन ही है, ऊपर से सिर्फ टिन लगा हुआ है. तो टिन क्योंकि लेस रिएक्टिव है, so tin will not get spoiled, it will not get corroded. Okay, so one of the application of electroplating is that you are saving the metal from corrosion. Okay, then the last one is zinc coating on iron. तो again iron again क्या है? It leads to corrosion. तो corrosion से iron को बचाने के, because there are so many things which are made up of iron. Bridges हैं, automobiles हैं, तो इन सभी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अगर ब्रिजेस कोलैप्स हो गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. ठीक है, सो आयरन बिकॉज करोड हो जाता है, इसीलिए आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं. सो द आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी करोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, क्योंकि आयरन बहुत आसानी से करोड हो जाता है. ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस तो है, बट देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस आल्सो, एंड वन ऑफ देम इज pollution. So air and water pollution is created. Why? Because the conducting solution which we are taking, जब आप डिपॉजिट करते हैं तो उस मेटल का क्या लेते हैं? सोल्यूशन लेते हैं. जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, कॉपर सल्फेट लिया, तो जब ये पूरा कंडक्शन कंप्लीट हो गया, पूरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट हो गई, आफ्टर दैट इस सोल्यूशन का डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेनी टाइम्स व्हाट विल हैपन, दीज कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, दीज आर डिस्कार्डेड इन द एनवायरमेंट. वाटर में डिस्कार्ड कर देते हैं इसको, या एयर में. सो व्हाट हैपेंस इज दैट मेनी पोल्यूटेंट्स लाइक हेवी मेटल, साइनाइड, ये सभी पानी के अंदर चले जाते हैं. सो दिस विल क्रिएट एयर एंड वाटर पोल्यूशन. तो इसका डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बिना ट्रीट किए डिस्पोज नहीं करें. ठीक है, so my dear students, here we come to the end of this video session and the end of this lesson too. So what we have understood, we understood that how the potato experiment, in the potato experiment we understood that how in some vegetables and fruits there is conduction possibility. ठीक है, so many vegetables and many fruits also conduct electricity. Secondly, we saw how electroplating is done and what are its applications. Got it, students? Now is the time that we have some very interesting questions for you. Let's assess your progress, whether you have understood or not. So, which electrode gains mass when electricity is passed through copper sulfate solution? तो कौन से electrode पे copper जाके deposit हो जाएगा? We know that copper deposits on cathode. That is the negative आपका इलेक्ट्रोड होता है, तो वहां पे पॉजिटिव कॉपर आयंस डिपॉजिट होते हैं. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, हमने पढ़ा था ये प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Got it, students? Let's see our last one. Tin cans are made by electroplating tin over iron. As tin is more reactive than iron? No, this is false. Tin is less reactive than iron. That is why its layer is deposited on iron, so that it's not reacting with the moisture and air around, and it is saving the food from any spoilage. Okay. So here we are, students, to the end of this video session. Hopefully you enjoyed watching this one and now you understand all the concepts related to this lesson. Please revise this one because this is an extremely important chapter, and hopefully now you are feeling confident about this one. Thank you so much for watching, students. Please take care.